Hello students, I welcome you to the platform of Infinity Vision. So today in this video I am going to discuss the complete solution of JEE Mains 2024 physics paper that was conducted by NTA on 30th Jan. The paper will be of morning shift as you can see behind the screen. So let's start. So this is the first question of section A. This is MCQ type. It is a match the following type of question. It's a very simple question based on dimensional analysis. Some physical quantities are given and their corresponding dimensions are given. Dimensional formula is given. So we have to match the correspondence. So the first is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity, we know that from a Stokes law we can write as 6 pi eta RV. So eta will be F upon 6 pi RV. Now the dimension formula of coefficient of viscosity will be dimension formula of force, which is MLT minus 2. 6 pi is a constant, it won't be having any dimensional formula. R is the radius, it will be having dimension of length, and it is LT minus 1 velocity. So length get cancels out and it becomes ML minus 1 T minus 1. So the dimension of A will be its option 3. So for A it is option number 3. So as you can see from this option, only this correspondence will be correct because in none of the options option 3 is being repeated. So correct option is option 3. This is the way to save the time. Coming to next parameter, which is surface tension. Now surface tension, we know that it is F by L, force per unit length. So dimension of surface tension will be MLT minus 2 and it is L. L will be cancelled out. So it will be MT minus 2, which can be written as ML0T minus 2. So which is option number 4. So C, it is 4. So correct option is option number 3. So the next is option D. You can see it is rotational kinetic energy. So energy means rotational kinetic energy or energy. The dimension is ML square T minus 2. So this is option number 1. So it's a very simple question. Option number 3 is the correct option. Now coming to next question, question number 2. All the surfaces shown in the figure are assumed to be frictionless and the pulleys and a string are light. The acceleration of the block of mass 2 kg is. This is a question based on constrained motion, and we will apply the concept of Newton's laws of motion. So let's assume that this block is moving with velocity a1 and this block is moving with velocity a2 in the upward direction. ठीक है ना? So ये दो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने अज्यूम कर लिया a1 a2. अब चूंकि ये स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग है तो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और यहाँ पर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन और 4G कर देते हैं G के टर्म में 4G. और यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में T2 है, यहाँ भी T2 हो जाएगा और ये T2 सिंगल स्ट्रिंग है. ठीक है, अब इसका FBD अगर बना है इस ब्लॉक का तो इस पे लग रहा होगा 2G फोर्स नीचे और इधर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स ऊपर. ठीक है, तो फॉर FBD या 4 kg ब्लॉक, अगर 4 kg ब्लॉक की बात करें, 4 kg ब्लॉक की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट 4 kg ब्लॉक, तो 4 kg ब्लॉक का अगर हम इक्वेशन लिखें तो एक्सेलरेशन नीचे है तो 4G माइनस T1 बराबर 4 इंटू A1, ये इक्वेशन 1 हो गया. और अगर 2 kg ब्लॉक की बात करें, वो अप द इंक्लाइन जा रहा है तो T2 माइनस 2G एक कंपोनेंट आएगा ग्रेविटी का इस तरफ 2G साइन 30 डिग्री. तो 2G साइन 30 डिग्री विल बी द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो 2G साइन 30 1/2 हो गया तो ये G हो गया. तो T2 माइनस G विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2a2. ये इक्वेशन 2 है. सो ये दो इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, बट हम लोग को सबसे पहले टेंशन में रिलेशन निकालना होगा. तो इस पर्टिकुलर पुली के लिए सिंस ये सारी पुलीज लाइट हैं तो इस पुली का कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो दोनों टेंशन बैलेंस हो रहे होंगे. तो वी कैन राइट हियर 2T2 इक्वल टू T1, ये कंस्टेंट रिलेशन हो जाएगा. अब इसको पूरे को यहाँ पर अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें, इस पर्टिकुलर रिलेशन में अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन में एक रिलेशन आ जाएगा. अब यहाँ से अगर हम लोग आएँ तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2a2 प्लस G और यहाँ से T1 की वैल्यू हो जाएगी 4G माइनस 4a1. तो ये जो सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा 2a2 प्लस G बराबर 2G माइनस 2a1 और यहाँ से आ जाएगा a1 प्लस a2, 2 कॉमन लेंगे तो 2G माइनस G बराबर G बाई 2. सो a1 प्लस a2 की जो वैल्यू आई वो आई G बाई 2. अब a1 और a2 में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा कंस्ट्रेंट रिलेशन से. एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होगा दैट विल बी कम फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन. तो कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर हम लोग लिखें
कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर हम लोग लिखें तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर लूँ, मूविंग पॉइंट को जो स्ट्रिंग पे, एक पॉइंट ये तो फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। ये पॉइंट को अगर हम लोग कंस्ट्रेंट कर लें तो ये पॉइंट, ये चूंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये बाकी सबको रेस्ट में मानना होता है, तो ये कंप्रेस होगा, तो इसका रिलेशन होगा -A2, और ये ऊपर जा रहा है, अब ये नीचे जा रहा है तो ये लेंथ से कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रिंग टाइट होगी, तो यहाँ हो जाएगा +A1 और उधर भी हो जाएगा +A1 इस पॉइंट के लिए, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि नेट वर्क डन बाई द टेंशन 0 होता है, टेंशन का कोई वर्क नहीं होता, एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन कोई वर्क नहीं कर सकती है, नेट वर्क 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कोई एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट नहीं है टेंशन लाइक स्प्रिंग। तो यहाँ से जो रिलेशन आया वो आया 2A1 बराबर A2, 2A1 बराबर A2। अब A2 की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो A2 की वैल्यू को यहाँ रख दें, A2 बराबर 2A1 तो आपको ब्लॉक 2 का निकालना, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, ओके। A2 वी हैव टू कैलकुलेट, तो A1 जो हो जाएगा यहाँ पे A2/2, A1 जो हो जाएगा A2/2, A2/2 + 2 बराबर G/2, तो ये 2A2 + A2 3A2/2 बराबर G/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और A2 की वैल्यू आ जाएगी G/3। सो जो सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, 2 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, दैट विल बी G/3, 1/3 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें, अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज शोन इन द फिगर, द आउटपुट वोल्टेज V0 इज, ये आउटपुट वोल्टेज V0 पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत देखने में कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस लग रहा है, ये 2 रेजिस्टेंस का सम है। अगर हम लोग और से देखें तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में का रेजिस्टेंस इक्वलेंट हो जाएगा 100 + 100, 200 और 3300, ये हो जाएगा 3500 ओम्स सीरीज में है, और इसका हो जाएगा, इस पूरे का इक्वलेंट हो जाएगा 500 ओम्स, 3500 ओम्स और 500 ओम्स, 3500 ओम्स और 500 ओम्स, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब ये सिंपल सर्किट हो गया हमारा कि एक बैटरी लगी हुई है, कितने की, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस है 3500 ओम्स का और एक रेजिस्टेंस है 500 ओम्स का। हमें 500 ओम्स के अक्रॉस बता देना है कितना पोटेंशियल होगा, तो टोटल करंट जो इस सर्किट में आ जाएगा, इसका R इक्विवेलेंट जो होगा इस सर्किट का वो हो जाएगा 4000 ओम, तो I बराबर होगा V/R, तो V है 4 और ये है 4000, तो ये हो जाएगा 1/1000 एम्पियर। 1000 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से भी फ्लो कर जाएगा, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V = 500 × R, 1/1000 एम्पियर, तो ये कैंसिल 5 2s are, तो इट विल बी 0.5 वोल्ट, ये 0.5 वोल्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस देके बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है, इक्विवेलेंट से अगर काम करेंगे तो बहुत ईजी सर्किट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल, बिल्कुल ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज कैपिटल Y, किसी वायर का यंग्स मॉडुलस दे रखा है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, एरिया = A और इसका यंग्स मॉडुलस है Y। If the length of the wire is doubled and the cross section area is half, the Young's modulus is. We know that the Young's modulus is a property of a material and it depends only on the temperature. It does not depends on the dimensions of the wire. तो Young's modulus वायर को आप लंबा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, एरिया घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, मटेरियल की प्रॉपर्टी है लाइक डेंसिटी, सो यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं करेगी, तो आंसर इसका Y ही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Now coming to question number 5, the work function of a substance is 3.0 electron volt. The longest wavelength of light that can cause the emission of photoelectron from this substance is. Work function हम लोग को पता है कि it's a minimum energy that is required to emit the electron from any metallic surface. तो work function दिया हुआ है 3.0 electron volt, ठीक है। तो कट ऑफ वेवलेंथ के टर्म्स में अगर बोलें तो ये 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यही है लैम्डा जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, क्योंकि लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये मिनिमम एनर्जी है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऊपर में कांस्टेंट है। अब HC है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, C है स्पीड ऑफ लाइट, तो HC की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, वो बहुत ही एक रेडीमेड डेटा है, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी
1240 बाई 3.0 और ये अप्रॉक्सीमेटली 414 नैनोमीटर के रेंज में आएगा. सो करेक्ट ऑप्शन जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का होगा दैट विल ऑप्शन नंबर 2. 414 नैनोमीटर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराएगी. Coming to question number 6, the ratio of the magnitude of kinetic energy to the potential energy of an electron in the fifth excited state of a hydrogen atom is. हम लोग को पता है कि बोर पोस्टुलेट्स में जब हम लोग हाइड्रोजेनिक एटम्स या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए व्हेन वी कैलकुलेट द डिफरेंट एनर्जीज, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो जो रिलेशन आता है वो ये आता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. This is the correlation between these three kinds of energy. For an electron revolving in any orbit of a hydrogen atom or hydrogenic species, ये रिलेशन होल्ड होता है कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बस साइन में अपोजिट होगा, और टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है. तो किसी भी nth ऑर्बिट के लिए ये ट्रू है. फॉर एनी ऑर्बिट, फॉर एनी nth ऑर्बिट, फॉर एनी ऑर्बिट ये ट्रू रिलेशन है. तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी 1/2. तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1/2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. बेसिक क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन, कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है. फार्मूला अगर याद है तो भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि n² जो है वो डिनोमिनेटर में आता है. ठीक है, तीनों एनर्जी के फॉर्मूले में, तो बस वो रेशियो का कोफिशिएंट का डिफरेंस है. A particle is placed at the point A of a frictionless track ABC as shown in the figure. It is gently pushed towards right. The speed of the particle when it reaches point B. एक पार्टिकल, एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक हमको दिया रखा है फिगर में, एक फिगर बना के दिया हुआ है, एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है. ठीक है, और एक पार्टिकल है A जो यहाँ पर लोकेटेड है. ये पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है. इट इज जेंटली पुश्ड फ्रॉम A एंड इट विल रोल डाउन ऑन दिस ट्रैक. ठीक है ना. तो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हेन द पार्टिकल रीचेस पॉइंट B, व्हाट इज इट्स स्पीड. उसकी स्पीड क्या होगी जब वो बी पॉइंट पर पहुंचेगा. व्हेन द पार्टिकल रीच पॉइंट बी, व्हाट विल बी द स्पीड. तो बहुत सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व. सो वी नो दैट. अगर आप देखिएगा गौर से, तो ये पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल डिसेंड्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो चेंज इन एलिवेशन डेल्टा एच, चेंज इन एलिवेशन इज 0.5 मीटर. सो चेंज इन एलिवेशन इज 0.5 मीटर. 0.5 मीटर से एलिवेशन घटा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी. ठीक है, तो उतने ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. ठीक है, द गेन इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. कोई लॉस नहीं एनर्जी का. तो अगर हम लोग करें डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर जेंटली पुश किया है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 मानेंगे अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी अगर हाफ mv/b² कर लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा mg डेल्टा एच. तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो vb हो जाएगा √2g डेल्टा एच. सभी वैल्यूज को पुट कर दें. 2 × 10 × डेल्टा एच है 1/2, 2 कैंसिल, √10 मीटर पर सेकेंड. सो जो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज √10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2. इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, √10 मीटर पर सेकेंड. Now coming to question number 8. This is a question of electromagnetic wave. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का वेव इक्वेशन दिया हुआ है एंड दे हैव आस्क्ड द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो वो ये है E0 cos ओमेगा टी माइनस KZ I कैप. ये कॉस का जो आर्गूमेंट है, फ्रॉम दिस आर्गूमेंट वी कैन कंक्लूड दैट द वेव इज प्रोपोगेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज पॉजिटिव जेड एक्सिस, सॉरी, क्योंकि ओमेगा टी और KZ के बीच में माइनस का साइन है. तो ओमेगा टी और KZ के बीच में अगर माइनस का साइन है तो वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव जेड एक्सिस. और चूंकि आई कैप लगा हुआ है यहाँ पर, तो इट इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज E0 cos ओमेगा टी माइनस KZ. नाउ वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रिक component of the EM wave both oscillates in perpendicular planes, और वो दोनों फेज में होते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेव z में जा रही है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन xz प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्वाइट नेचुरली इन द yz प्लेन. तो by जो हो जाएगा वो हो जाएगा B0 cos ओमेगा टी माइनस KZ. Now we know the relation that E0 by B0, the ratio of the amplitude of electric field and the magnetic field is equal to the speed of light. तो B0 की वैल्यू E0 by C हो जाएगी. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे E0 by C cos ओमेगा टी माइनस KZ. अब यहाँ से by को अगर हम लोग कंपेयर करें
तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ई नॉट सी है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें प्लस आ गया है तो ये भी गलत है बिकॉज फेस हैज़ टू बी सेम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। और ई वाई बी वाई की जगह जे कैप लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन वाई डायरेक्शन, वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये ई एम वेव का। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि दो सर्कुलर लूप्स दिए हुए हैं एंड दे आर ओरिएंटेड एज शोन इन द फिगर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर देखा जाए इधर तो इस लूप को देखा जाए, लेट अस कॉल दिस एज लूप 1 एंड दिस एज लूप 2। तो लूप 1 में करंट अगर देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट द सेंटर विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा ड्यू टू लूप 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r वेयर r इज द रेडियस ऑफ द लूप, म्यू नॉट आई अपॉन 2r वेयर r इज द रेडियस ऑफ द लूप। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड लूप, तो सेकेंड लूप में अगर हम लोग करंट देखेंगे तो इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है। फ्रॉम इफ द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग दिस लूप फ्रॉम दिस साइड एंड द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये B2 की वैल्यू हो जाएगी अगेन म्यू नॉट आई अपॉन 2r बिकॉज द रेडियस ऑफ ईच लूप इज a, ठीक है। तो दोनों का रेडियस सेम है और दोनों में करंट भी सेम फ्लो कर रहा है। अब जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, इट्स अ वेक्टर एडिशन। दो फील्ड है हमारे पास है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। एक है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, नाउ दिस इज ऑल्सो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सो क्वाइट नेचुरल द वेक्टर सम विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू एंड इट विल बी B net या B रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सो आई की वैल्यू कैपिटल आई ले रखी है, तो ऑन द यूजिंग द सिंबल दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2a। सो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द लूप, म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2a। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10, the diffraction pattern of a light of wavelength 400 nanometer diffracting from a slit of wavelength 0.2 mm is focused on the focal plane of a convex lens of focal length 100 centimeter. The width of the first secondary maxima. ये diffraction का सवाल है, single slit diffraction का question है ये। तो let us draw a schematic diagram। यहाँ पे हमारा slit है, यहाँ पे हमारा slit है and this is a convex lens which is kept over here, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनता है, वी नो दैट इस तरह का पैटर्न बनता है डिफ्रैक्शन में, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है और ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो ये विड्थ पूछी गई है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द विड्थ, दिस विड्थ। और ये जो है फोकल प्लेन है, स्क्रीन जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है f इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड दिस पर्टिकुलर slit difference width of slit is a equal to 400 nanometer 0.2 mm, slit की width दिए हुए 0.2 mm। so it's a very simple question। तो हमको ये निकालना है, ये width निकालना है x, तो we know that x will be equal to lambda f upon a, simple। क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के ब्राइट है मैक्सिमा है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आपको वेवलेंथ होता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ होता है n इक्वल टू, अगर हम लोग 1 करेंगे तो ये लैम्डा f बाई a आएगा। तो लैम्डा के लिए अगर हम लोग कहेंगे 400 नैनोमीटर है, ये 400 नैनोमीटर का इसका वेवलेंथ है, तो 400 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, 100 सेंटीमीटर बोला गया है, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया। और जो विड्थ है दैट इज़ 0.2 mm, यानी 0.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 mm में वैल्यू आ जाएगी। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। इस विड्थ की दिस इज x इज इक्वल टू 2 mm, जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी विड्थ है 2 mm। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रांसफार्मर क्वेश्चन है। प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर 110 respectively. Secondary coil of transformer is connected to two series resistance as shown in the figure. The output voltage V0 is
एक ट्रांसफार्मर का स्कीमेटिक शेयर किया गया है, दिया गया क्वेश्चन में। ये प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का और ये सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का, 220 वोल्ट ईसी इनपुट से कनेक्टेड है और दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं सेकेंडरी में 15 किलो ओम और 7 किलो ओम के सीरीज में। तो ये वी नॉट पूछा है, कितना वी नॉट होगा आउटपुट वोल्टेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम लोग यूजिंग द बेसिक ट्रांसफार्मर इक्वेशन, अज्यूमिंग नो लॉसेज ड्यूरिंग द कपलिंग, सो वी कैन राइट वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी upon voltage across secondary is equal to number of turns in the primary upon number of turns in the secondary। तो चूंकि secondary में number of turns कम है तो quite obvious it is a step down transformer। तो अगर हम लोग Vs को निकालें, if we try to calculate Vs, then Vs will come out to be Vp ns upon Np। Vp ns upon Np। Now Vp is primary का voltage दे रखा है 220, ns जो secondary का turns है that is 10 and this is 100। So this is 22 volt। सो यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है दैट इज 22 वोल्ट। ठीक है। नाउ दिस इज अ सिंपल सर्किट, इज नथिंग टू डू विथ ट्रांसफार्मर। अब हमारे पास सिंपल दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में और यू कैन अज्यूम अ बैटरी ऑफ 22 वोल्ट जो यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है 15 किलो ओम की और ये रेजिस्टेंस है 7 किलो ओम की। ठीक है। तो ये टोटल जो हो गया आपको, अगर 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया आर इक्विवेलेंट, 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया और 22 वोल्ट की बैटरी है, तो जो करंट होगा सर्किट में आई इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। वी है 22 और ये है 22 किलो ओम ये वोल्ट, तो ये 1/1000 एम्पियर आ जाएगा करंट। द करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है सेकेंडरी में दैट इज 1/1000 एम्पियर। अब पोटेंशियल निकालना है तो सेम करंट विल फ्लो थ्रू 7 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो जो पोटेंशियल 7 किलो ओम के अक्रॉस हो जाएगा दैट विल बी V इक्वल टू आई आर। आई इज 1/1000 एंड आर इज 7000। सो दिस इज इक्वल टू 7 वोल्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो द वोल्टेज V नॉट की जो वैल्यू होगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट विल बी 7 वोल्ट। Now coming to question number 12, next question. The gravitational potential at a point above the surface of Earth is minus 5.12 into 10 raised to the power 7 joule per kilogram, and the acceleration due to gravity at that point is 6.4 meter per second square. Assume that the mean radius of Earth to be 6400 kilometer. The height of this point above the surface of Earth is. बहुत basic question है ये gravitational chapter का। In this question they are telling that अगर Earth के surface के ऊपर एक point ले लिया जाए P पॉइंट, ठीक है, अर्थ के रेडियस अगर कैपिटल आर है और इस पॉइंट की जो अर्थ से डिस्टेंस है, लेट्स सपोज दिस इज h, तो P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इन क्वेश्चन इज गिवन एज माइनस 5.12 10 रेज टू द पावर 7 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P इज गिवन एज 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ h की वो पॉइंट सरफेस से कितना ऊपर लोकेटेड होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करें, जस्ट वी हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। अगर फॉर्मूला में पुट करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Vp इक्वल टू माइनस GM बाई आर और r की वैल्यू हो जाएगी r प्लस h, क्योंकि फॉर आउटसाइड पॉइंट द सॉलिड स्फीयर वी कैन अज्यूम दैट द इंटायर सॉलिड स्फीयर इज द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। सो सेंटर से P पॉइंट की दूरी हो जाएगी r प्लस h, तो पॉइंट मास का पोटेंशियल होता है माइनस GM बाई आर प्लस h एंड दिस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन एज माइनस 5.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 और Gp जो हो जाएगा दैट इज GM बाई उस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज GM बाई आर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, तो वो हो जाएगा माइनस GM बाई आर प्लस h का होल स्क्वायर और ये 6.4 दे रखा है। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को जस्ट वी हैव टू डिवाइड दिस टू इक्वेशंस। तो अगर डिवाइड करें तो माइनस जी एम कैंसिल हो जाएगा। आर प्लस एच विल बी इक्वल टू 5.12 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 बाई 6.4। आर प्लस एच ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से h की वैल्यू जो आ जाएगी 5.12 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 बाई 6.4 माइनस आर इज 6400 इंटू 1000 मीटर। सो जब इसको सॉल्व करेंगे 64 से ये कैंसिल भी हो जाएगा, ये 64 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो h की वैल्यू जो होगी दैट इज 5.12 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 बाई 6.4 और 1000 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि किलोमीटर में आंसर है।
ये 6400 एज इट इज़ रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 512 बाई 64, ऊपर चला जाएगा ये 4 और ये 10 का पावर 5 माइनस 6400, तो ये हो गया 8 टाइम्स और ये 3 होगा, तो 8000 माइनस 64 6400 और ये 1600 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो साथ ये जो है आपका जो हाइट की वैल्यू है दैट विल बी 1600 किलोमीटर, मतलब सरफेस से 1600 किलोमीटर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू उतनी मिलेगी और ग्रेविटी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू उतनी मिलेगी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. The toaster is connected to a 220 volt supply. If the current flowing through it reaches 2.7 ampere to 75 ampere, the temperature attained by the toaster is around. The temperature of the toaster is given, is asked. एक resistance है टोस्टर का जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 60 ओम और ये टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे. नाउ दिस टोस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई और करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है वो 2.75 एम्पियर का. तो अगर इसको हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दें, वी कनेक्ट दिस टोस्टर विद 220 वोल्ट सप्लाई, तो करंट जो इसमें आ रहा है 2.75 एम्पियर. ठीक है, तो अब इसकी रेजिस्टेंस अगर निकालूं R2, लेट कॉल दिस वन एज R1. सो R2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी वोल्टेज बाई करंट 220 बाई 2.75. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 220 इंटू 100 बाई 275, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 11 5 ज़ा 11, 4 ज़ा 520, दिस इज 80 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है. सो ये जो रेजिस्टेंस निकल के आई है 80 ओम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई. जब 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस 60 ओम से बढ़कर 80 ओम हो जाएगी. इट क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगा ड्यू टू जूल्स हीटिंग, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. नाउ वी हैव टू रेजिस्टेंस, वन इज 60 ओम एंड अनदर वन इज 60 ओम एंड अनदर इज 80 ओम. नाउ वी हैव टू रेजिस्टेंस, वन इज 60 ओम एंड अनदर इज 80 ओम. ठीक है, तो R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. वी नो दैट दिस रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अल्फा, उसके टर्म्स में हम लोग रेजिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं. तो ये 80 है, ये 60 है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 और डेल्टा टी विल बी T2 माइनस 27. ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे. अगर इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो T2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगी 1694 डिग्री सेल्सियस. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 1694 डिग्री सेल्सियस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. ये क्वेश्चन है जिनर डायोड पर बेस्ड है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जिनर डायोड. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जिनर डायोड. Now in this question a Zener diode of breakdown voltage 10 volt is used as voltage regulator as shown in the figure. The current through the Zener diode is, Zener diode से करंट पूछा गया है. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इन दिस क्वेश्चन द ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ Zener डायोड का. तो अगर ये 0.0 वोल्ट पर है तो ये भी 0.0 वोल्ट पर होगा, ये भी 0.0 वोल्ट पे होगा, ये भी 0.0 वोल्ट पे, एंड दिस पॉइंट विल बी एट 20 वोल्ट. अब Zener डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट, सो दिस पॉइंट विल बी एट 10 वोल्ट. सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया. दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है. तो अगर हम इफ़ यू कैलकुलेट द करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टेंस, I1 यहाँ मान लें और यहाँ I2 मान लें, सो द वैल्यू ऑफ I1 विल बी V बाई R. V इज 10 एंड दिस इज 200. 10 वोल्ट और ये 200, तो ये 1 बाई 20 वोल्ट 10 वोल्ट. ठीक है, तो ये 10 बाई 200 हो जाएगा V बाई R. तो 1 बाई 20 एम्पियर और I2 हो जाएगा V बाई R और यहाँ पर V है 10 और ये 500, 1 बाई 50 एम्पियर. सो जो करंट Zener डायोड में जाएगा IZ विल बी नथिंग बट I1 माइनस I2. I1 माइनस I2 विल बी IZ. I1 की वैल्यू है 1 बाई 20 और इसकी वैल्यू है 1 बाई 50. बस इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है.
तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो चूंकि मिली एम्पियर में है, तो I2 इक्वल टू 1/20 माइनस 1/50 इंटू 1000 अगर कर दे मल्टीप्लाई, तो 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 मिली एम्पियर. So the current through the Zener diode for this particular question will be 30 milliampere. So the correct option is option number 3. Now coming to question number 15, two thermodynamical processes are shown in the figure. The molar heat capacity for process A and B are Ca and Cb. The molar heat capacity at constant pressure and constant volume are represented by Cp and Cv respectively. Choose the correct statement. First of all, this question was a bonus question. ठीक है ना, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं थे. जो ऑफिशियल पेपर एनटीए का था एग्जाम के दिन, these options were given but none of the options were matching. So this is a bonus question. The marks will be awarded to every student who has attempted this question. अब हम लोग देखें इस particular question को अगर solve करें, if you try to solve this question, so this is process A and this is process B. Let's talk about process A. If you talk about process A, so process A का जो slope straight line है, तो इसका जो slope होगा वो होगा log P upon log V. Log P upon log V will be equal to gamma. So log P equal to gamma log V. Log P equal to log V raised to the power gamma. And this is equals to P equal to V ka power gamma. So the process is P V minus gamma equal to constant. So this curve is PV minus gamma equal to constant. ठीक है. नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट प्रोसेस 2. अब अगर प्रोसेस 2 के लिए बात करूं, बी के लिए, प्रोसेस बी के लिए अगर बात करें, तो log P अपॉन log V इक्वल टू tan 45 है स्लोप, और ये 1 हो गया, तो log P बराबर हो जाएगा log V, तो P बराबर V. तो यहाँ से जो प्रोसेस आया PV रेज टू दी पावर -1 बराबर कांस्टेंट. सो ये जो प्रोसेस है दिस इज PV -1 बराबर कांस्टेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करें इंफॉर्मेशंस को, मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस ए के लिए CA है, मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस ए के लिए CA दी हुई है, तो CA विल बी इक्वल टू CV प्लस R अपॉन RU अपॉन 1 माइनस N. ठीक है ना. ये फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है. तो CV की वैल्यू तो CV रहने दी जाए, RU है 1 अप माइनस N, तो प्रोसेस A के लिए N की वैल्यू हो जाएगी माइनस गामा, और ये माइनस गामा हो जाएगा, तो CV इक्वल टू प्लस RU अपॉन 1 प्लस गामा. ये इक्वेशन 1 हो गया, तो ये CA आ गया. उसी तरह अगर नाउ वी कैलकुलेट CB, तो CB विल बी CV प्लस RU अपॉन 1 माइनस N, और प्रोसेस B के लिए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू है -1, तो -1 अगर करूँगा यहाँ पे, तो CV प्लस RU अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा. ये इक्वेशन 2 है. Now if we compare these two equations, in both these equations, CV plus RU upon 1 plus 1, CV upon RU 1 plus gamma. Now we know that gamma is always greater than 1. Gamma is the ratio of CP by CV, and CV is always greater than CP is always greater than CV. तो गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होती है. तो ये पार्ट जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ज़्यादा है और ये पार्ट छोटा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है CB इज ग्रेटर देन CA. पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि CB CA से बड़ा है. ठीक है, CB इज ग्रेटर देन CA. अगर CP की बात करें, द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV फॉर आइडियल गैस, जिसको मेयर्स इक्वेशंस भी कहते हैं, सो दैट CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CP बराबर CV प्लस RU. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है, तो कुछ 1 से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे बड़ी क्वांटिटी यही हो गई. तो CP इज ग्रेटर देन बोथ CB एंड CA. ठीक है ना, और CV तो CV है, तो सबसे छोटा हो गया CV, सबसे बड़ा हो गया CP, फिर CB, फिर CA. तो ये ऑर्डर होना चाहिए मोलर हीट कैपेसिटीज का. सो एज यू कैन सी नन ऑफ द ऑप्शंस आर मैचिंग एज विच वाज गिवन इन द ऑफिशियल पेपर. सो ये बोनस क्वेश्चन है. करेक्ट ऑप्शन है CP ग्रेटर देन CB ग्रेटर देन CA ग्रेटर देन CV. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस R वेरीज एज. ठीक है, एक डाइपोल अगर है
तो डाइपोल से आर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, लेट्स सपोज दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस एंगल इज थीटा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज नथिंग बट के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पी डाइपोल मोमेंट है, पी इज इक्वल्स टू क्यू इन टू डी इफ दिस सेपरेशन इज डी। ठीक है, तो ये डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर थीटा एंगल पर विच इज इंक्लाइन टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो वहाँ से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली सी दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है। Now coming to question number 17, a spherical body of mass 100 gram is dropped from a height of 10 meter from the ground. After hitting the ground, the body rebounds to a height of 5 meter. The impulse of force imparted by the ground to the body is given by। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये काइनेमैटिक्स का। एक बॉल है which is being dropped from a height of 10 meter and after rebounding it rises to a height of 5 meter। ये दो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो पूछा गया है व्हाट इज द चेंज इन, व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड। ग्राउंड से क्या इम्पल्स लगेगा कोलिजन के टाइम में, तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम लोग मान लें कि ये ग्राउंड को हिट किया है v1 वेलोसिटी से और ये ऊपर कोलिजन के बाद गया है v2 वेलोसिटी से ऊपर उठा है, सो v1 विल बी नथिंग बट अंडर रूट 2g h1 2 इंटू 9.8 इंटू 10, क्योंकि 10 मीटर की हाइट से उसको गिराया गया है। और उसी तरह v2 इज इक्वल टू 2gh2 और ये 2 इंटू 9.8 इंटू 5 हो जाएगा। सो इम्पल्स जो इम्पार्ट होगा, द इम्पल्स इम्पार्टेड विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम है mv2 और इनिशियल मोमेंटम है mv1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएंगे। mv2 प्लस mv1 हो जाएगा, ये m कॉमन v2 प्लस v1। ठीक है, अब मास 100 ग्राम दे रखा है, तो इसको अगर सबको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, और ये पूरी वैल्यू में अगर हम लोग रख दें 2 इंटू 10 इंटू 9.8 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 9.8, सो ये पूरी वैल्यूज़ को अगर कैलकुलेट की जाए तो इट विल कम अराउंड 2.39 kg per meter per second. So the impulse imparted during the collision when the ball is being dropped from a height of 10 meter will be 2.39 kilogram meter per second. So correct option is option number 4. A particle of mass m projected with a velocity u making an angle theta with 30 degree with the horizontal, the magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at maximum height. It's a very standard question. रोटेशन में ये बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। They are telling that a projectile is being thrown, has been fired with some angle, let's suppose 30 degree, which is given in the question, with a velocity u. So जब वो maximum height पर पहुंचेगा, when it reaches the maximum height, this is the maximum height, h max. Then they are telling what is the angular momentum at this point about the point of projection, So let us join this point, this is the position vector, and let this angle be alpha. ठीक है ना, तो पोजीशन वेक्टर को अगर थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड करें, सो ये एंगल अल्फा है, ये है u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये है एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड द प्रोजेक्शन पोजीशन वेक्टर ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो होता है m v r sin अल्फा, r क्रॉस m v। एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस m मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको एक्सपैंड करेंगे m v r sin अल्फा, क्योंकि r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी v हॉरिजॉन्टल, दैट विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos 30 डिग्री। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मैक्सिमम हाइट पर u cos थीटा ही होगा, हर जगह u cos थीटा ही होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो u cos थीटा, तो इसको अगर हम लोग यहाँ रखें तो मास v हो जाएगा u cos थीटा 30 डिग्री। नाउ r sin अल्फा, ये r है, ये पोजीशन वेक्टर है r sin अल्फा विल बी इक्वल टू h मैक्स। r sin अल्फा कंबाइंड जो है वो r sin अल्फा कंबाइंड h मैक्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखें mu स्क्वायर, ये √3/2, सॉरी mu है ये, और cos 30 √3/2 हो गया, और h मैक्स होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो √3mu³ अपॉन 16g। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, √3mu³ अपॉन 16g। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। Now coming to next question, question number 19. At what temperature the RMS velocity of hydrogen molecule equal to that of an oxygen molecule at 14 degrees Celsius? RMS velocity of hydrogen को बराबर करना है RMS velocity of oxygen की, और वो टेम्परेचर पता करना है कि किस टेम्परेचर पर ये कंडीशन होल्ड होगी। तो RMS velocity का अगर टेम्परेचर रिलेशन देखें तो 3RUT बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ से 3RUT बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो यहाँ से जो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें कि ये T1 और ये T2 मान लें, तो यहाँ पे T1 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू T2 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का जो RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो T1 निकालना है, इसका 2 हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, T2 है 47 प्लस 273 और मॉलिकुलर वेट 32, ये 16 टाइम्स, और इसको करेंगे तो ये 320 आएगा बाई 16 इक्वल टू 20 केल्विन। सो 20 केल्विन पर जो RMS स्पीड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इज 20 केल्विन। 20 केल्विन पर जो RMS स्पीड है आपकी ऑक्सीजन की, वो वही RMS स्पीड होगी हाइड्रोजन की, कितने पर? 47 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19। Now the last question of section A, question number 20. A series LR circuit connected with an AC source E equal to 25 sin 1000 t volt has a power factor 1/√2. If the source of EMF is changed to E equal to 20 sin इतना, then the new power factor is। एक सीरीज LR सर्किट दिया हुआ है, एक सीरीज LR सर्किट दिया हुआ है, और उसमें एक सोर्स को लगाया गया है, दो सर्किट है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है L, और है E इक्वल टू E1 लिख देता हूँ मैं, इट इज़ 25 साइन 1000 t. Now the same circuit, the same LR circuit is now being connected with a second changed source RL E2 equal to 20 sin 2000 t. ये कंडीशन दी हुई है कि एक LR सर्किट को सोर्स E1 से कनेक्ट करा है, फिर उसी LR सर्किट को सोर्स E2 से कनेक्ट करा है। तो पहले केस में इन दे आर टेलिंग दैट द पावर फैक्टर cos phi1 इज 1/√2। तो सेकेंड केस में पावर फैक्टर cos phi2 क्या होगा? व्हाट विल बी द पावर फैक्टर इन सेकेंड केस? ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो बहुत ही सिंपल है इस सोल्यूशन। जस्ट वी हैव टू ड्रॉ अ इम्पीडेंस ट्राइंगल। ये हमारा phi1 है, दिस इज XR विच इज़ इक्वल टू R, और ये XL है विच इज़ इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है। ये 1/√2 दे रखा है, तो cos phi1 की वैल्यू अगर 1/√2 है तो इट इज़ नथिंग बट 45 डिग्री। तो phi1 इज़ व्हाट? 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से XL और XR बराबर हो जाएगा। दिस इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर 45 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है तो XL और ओमेगा L बराबर, XL और XR बराबर हो जाएगा। तो इफ़ वी इक्वेट XL एंड XR, XL बराबर XR, ओमेगा L बराबर R, तो L बाई R की जो वैल्यू है दैट इज़ 1/ओमेगा इक्वल टू 1/1000। ये पहली रिलेशन से हमको मिला। From the first equation, from the first condition, we obtained the value ratio of L by R, that is nothing but 1/1000. Now we will use this ratio in the second case. अगर second case की बात करें, second case का अगर हम लोग impedance triangle बनाएं, तो second case में मान लेते हैं कि phase angle phi2 हो चुका है, this is XRR, और ये ओमेगा डैश L हो चुका है XL, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। तो अब अगर यहाँ से देखें हम लोग, तो tan phi2 जो हो जाएगा दैट इज विल बी ओमेगा डैश L बाई R, और L बाई R है ओमेगा डैश बाई ओमेगा। तो ओमेगा डैश की L बाई R 1/ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा डैश की वैल्यू जो है हो गई आपको 2000, और ओमेगा की वैल्यू 1000,
तो tan phi की वैल्यू 2 आ गई, सो tan phi 2 की वैल्यू आ गई 2। नाउ अगर tan phi 2 उस ट्राइंगल में phi 2 अगर ये 2 है ये 1 है तो क्वाइट ऑब्वियस है ये 5 होगा, ठीक है ना। तो cos phi 2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, cos phi 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/√5, cos phi 2 की वैल्यू आ जाएगी √5 1/√5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, मतलब जो नया पावर फैक्टर होगा दैट विल बी 1/√5। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। अब ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, द एमसीक्यू पार्ट हैज बीन फिनिश्ड। तो सेक्शन बी में अगर देखें, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 3.5 into 10⁻⁻5 टेस्ला, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ √2 एम्पियर इन द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट is placed, the force per unit length experienced by the conductor is. Now we know that the magnetic force experienced by the conductor placed in a magnetic field is given by BIL sin theta. This is the magnitude of the magnetic force, क्योंकि IL क्रॉस B होता है, एक्सपैंड करेंगे तो BIL sin थीटा हो जाएगा। Now what they are telling in the question में ये कहा जा रहा है कि एक वायर को इस तरीके से प्लेस किया गया है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और वायर जो रखा गया है दैट इज फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, तो ये वायर है हमारा, दिस इज द वायर एंड दिस इज कैरिंग करंट इन दिस डायरेक्शन आई विच इज इक्वल टू √2 एम्पियर। सो क्वाइट ऑब्वियस दिस इज एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है BH इक्वल टू 3.5 into 10⁻⁵ टेस्ला। सो ये सारे वैल्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा BI sin थीटा। B की वैल्यू 3.5 into 10⁻⁵, करंट √2 है और sin 45 1/√2 हो जाएगा। सो √2 से √2 कैंसिल, 3.5 10⁻⁵, तो अगर कंपेयर करें तो ये 10⁻⁶ में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 35 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर होगा वो होगा 35, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन आंसर होगा 35। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, two cells are connected in opposition as shown in figure. Cell E1 is of 8 volt EMF and 2 ohm internal resistance. The cell E2 is of 2 volt EMF and 4 ohm internal resistance. The terminal potential difference of the cell E2 is. तो अगर हम लोग गौर से देखें इसको, अगर हम लोग गौर से देखें तो एक सेल E1 है और एक सेल E2 है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड करेंगे, तो दे आर अपोजिंग ईच अदर। तो जो इक्विवेलेंट बैटरी हम बनाएंगे दैट विल बी लाइक दिस। ये क्वेश्चन में ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। ये E1 है जिसकी 8 वोल्ट है और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये E2 है जो कि 2 वोल्ट है और 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट बैटरी बनाएं तो दैट विल बी E1 - E2, क्योंकि जो बड़ा है उससे छोटा को घटाया जाएगा। सो इक्विवेलेंट बैटरी विल बी लाइक दिस, ये इक्विवेलेंट बैटरी हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 वोल्ट का और ये हो जाएगा 6 ओम का, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस तो ऐड ही होंगे। तो द कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी 4 + 2 6 एंड द बैटरी विल बी E1 - E2 8 - 2 6 वोल्ट। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये करंट फ्लो करेगा ऐसा जो कि सर्किट में फ्लो कर जाएगा। तो I की वैल्यू हो जाएगी 6/6 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आया I बराबर 1 एम्पियर, यहाँ से भी I बराबर 1 एम्पियर और ये I बराबर 1 एम्पियर यहाँ से चला गया, ठीक है। तो ये जो करंट I बराबर 1 एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रहा है, अब पूछा गया है व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2। तो ये जो सेल E2 है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर बात करें तो ये 2 वोल्ट प्लस IR 6 वोल्ट, ठीक है ना, ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट इज फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस, और हमारा सेंस ऑफ मूवमेंट भी अगर इधर ही अगर हम लोग KVL लगाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो एंड द करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो 2 वोल्ट तो ये हो गया, प्लस 4 × 1 4 4 + 2 6 वोल्ट, तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है इसका 6। Coming to question number 23, an electron of hydrogen atom on excited state is having energy En equal to -0.85 electron volt. The maximum number of allowed transition to lower energy level is.
nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, वो है -13.6 Z² बाई एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट में एनर्जी का। ठीक है, तो ये एनर्जी की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग को ये पता करना है कि n क्या होगा। हाइड्रोजन है तो Z1 है, तो 13.6 बाई एन स्क्वायर इक्वल टू 0.85। तो यहाँ से n स्क्वायर हो गया 13.6 बाई 0.85। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4। सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू जो आ जाएगी 4 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो 4 मतलब कि ये फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। ये तो न्यूक्लियस हो गया 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अभी फोर्थ ऑर्बिट में है, n इक्वल टू 4। अब यहाँ से उसको ट्रांजिशन करते हुए आना है। ठीक है, यहाँ से इसको ट्रांजिशन करते हुए आना है, तो बहुत सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो वही कह रहा है कि मैक्सिमम कितने ट्रांजिशन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, अलाउएबल ट्रांजिशंस जो होगा दैट विल बी n इंटू n माइनस 1/2। n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल ट्रांजिशंस जो होंगे वो हो जाएंगे 6। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, each of the three blocks P, Q and R shown in the figure has a mass of 3 kg. Each of the wire A and B has cross-sectional area 0.005 centimeter square and Young modulus equal to 2 into 10 raised to the power 11 Newton per meter square. Neglecting friction, the longitudinal strain on wire B is, वायर बी के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे भी टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, यहाँ पे टेंशन T2 है। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई टेंशन की। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर हर ब्लॉक का मास 3 kg है, तो 30 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और बस 3 kg के ब्लॉक है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से हम देखेंगे कि तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि ये दोनों सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ P बराबर एक्सेलरेशन ऑफ Q बराबर एक्सेलरेशन ऑफ R। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन से आया है, तीनों का एक्सेलरेशन बराबर, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, नाउ वी विल अज्यूम दैट कि ये वाला ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट कर रहा है और बाकी ये दोनों जो ब्लॉक हैं, दीज टू ब्लॉक्स आर मूविंग विद एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स राइट। अब बस हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ लिख लेना है इक्वेशन सभी ब्लॉक के लिए। तो अगर ब्लॉक आर की बात करें तो इट इज़ ट्रांसलेटिंग डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा 30 माइनस T1 बराबर 3 है, इक्वेशन 1। ब्लॉक क्यू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 बराबर 3a, और ब्लॉक P की बात करें तो ये हो जाएगा T2 बराबर 3a। अब 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए 2 + 3, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए 2 + 3, फिर ऐड इक्वेशन 2 and 3 तो हो जाएगा T1 इक्वल टू 6a, और इस T1 को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 30 माइनस 6a बराबर 3a, तो 9a बराबर 30, a बराबर 30/9, 3/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द 3 ब्लॉक्स विल बी 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन पता चल गया है, तो T1 की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे वो हो जाएगा हमारा 6 × 10/3, 3 × 2 = 20 न्यूटन। यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का टेंशन है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। अब हमें इस स्ट्रिंग की पूछी गई है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन ई। तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज सिग्मा अपॉन वाई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस होगा कि जैसे ये वायर है आपका, ये वायर है, अब इसमें टेंशन T1 लग रहा है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है,
तो स्ट्रेस होगा T1 अपॉन ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे T1 अपॉन ए वाई कर देंगे। अब T1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखी थी 20 न्यूटन। एरिया दे रखा है इसका वायर का 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.005 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, और y की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11। ये है कहानी। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे अगर, तो 2 10 से 20 हो गया 5, और ऊपर 10⁻⁵ और 11 10⁻⁻⁻6, ठीक है, और ऊपर चला गया 1000, तो ये हो गया 5.2 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 - 4। सो जो एक्सप्रेशन यहाँ पर मैच करें अगर वी मैच आंसर विद द गिवन हिंट, तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो कोफिशिएंट 2 होगा, जो मल्टीपल होगा वो 2 होगा, 2 इंटू 10⁻⁻4। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 इंटू 10⁻⁻4। ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25. The distance between object and its 2 times magnified real image as produced by a convex lens is 45 centimeter. The focal length of the lens used is, एक convex lens की बात कर रहे हैं और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर f है, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे f है, यहाँ पे 2f है। A 2 times magnified real image, तो convex lens में इमेज मैग्नीफाइड कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में हो। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इसकी मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर बनेगी। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये है 45 सेंटीमीटर, ये है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं x, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 45 - x हो जाएगा ऑब्जेक्ट तक का, ठीक है। नाउ 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, तो मैग्निफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है, दैट इज -2, क्योंकि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन -2 होगा, और लेंस का मैग्निफिकेशन होता है v/u = -2। v है 45 - x और u है -x = -2। यहाँ से करेंगे तो 45 - x बराबर -2x हो जाएगा, तो ये 3x बराबर 45, तो x की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर x की वैल्यू हो गई, तो पूछा गया है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड इज, तो u की वैल्यू हो गई है हमारी -15 सेंटीमीटर और v की वैल्यू हो गई है 30 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से फोकल लेंथ पूछा गया है, तो 1/v - 1/u, 1/30 + 1/15, और ये 3 + 4/2 + 1 3/30 1/10। तो फोकल लेंथ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस जो यूज़ किया गया है उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10 सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26. The displacement and increase in velocity of a moving particle in the time interval t to t + 1 second are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t + 2h second is. एक पार्टिकल के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि वो पार्टिकल है, लेट्स सपोज दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, और पार्टिकल के बारे में कहना है कि t से t + 1, ये टाइम t है, ये टाइम t + 1 है, इसमें इस पार्टिकल ने 125 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब vq - vp जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो पूछा गया है t + 2 सेकेंड में, तो t + 2 सेकेंड, t + 2th सेकेंड का मतलब होता है nth सेकेंड का मतलब होता है n सेकेंड और n - 1 सेकेंड। तो t + 2th मतलब t + 2 यहाँ होगा, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है कि ये कितनी होगी, व्हाट विल बी दिस x, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का होगा वो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, vq - vp अपॉन टाइम, ये 50 है, और टाइम यहाँ से कितना का लगा है, यहाँ से टाइम है 1 सेकेंड का, तो y1, ये 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अब पार्टिकल इसी एक्सेलरेशन से आगे वाला डिस्टेंस भी कवर किया होगा, तो बहुत सिंपल है। तो अगर हम लोग देखें x बराबर ut + ½ at², इनिशियल वेलोसिटी कितनी है vq, टाइम है 1 + ½ इंटू एक्सेलरेशन है 50 इंटू 1², तो ये बना vq + 25, x की वैल्यू आ गई vq + 25।
अब आते हैं इस पार्ट पे। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है कि 125, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वी पी हो जाएगा, टाइम है 1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू 50 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 125 इतना, तो वी पी की वैल्यू हो जाएगी आपको 225, तो वी पी विल बी इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। वी पी की वैल्यू 100 हो गई, तो वी पी अगर 100 हो गया हमारा और वी पी माइनस वी क्यू 50 है, तो वी क्यू वी पी प्लस 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। इस 150 को अगर हम लोग यहाँ रख दें तो ये 150 प्लस 25 विल बी इक्वल टू 175 मीटर। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन t प्लस 2h सेकेंड। ये जो आंसर है दैट इज 175 मीटर। 175 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का q से p में। सो इसका आंसर है 175। Coming to question number 27, a capacitor of capacitance C and potential V has energy E. It is connected to another capacitor of capacitance 2C and potential 2V. Then the loss of energy is x by 3 E, where x is. एक कैपेसिटर के बारे में कहा जा रहा है जिसका कैपेसिटेंस C है और उसको V वोल्ट से चार्ज किए है, और एक दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 2C है और उसको 2V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया गया है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी जो दी गई है E विच इज़ इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया E के टर्म में इसकी एनर्जी E है। तो अगर दोनों की एनर्जी को मैं ऐड करूं तो टोटल एनर्जी इनिशियल ई आई विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ 2c इंटू 2v, 2c इंटू सी वी स्क्वायर 4v स्क्वायर, तो ये सी वी स्क्वायर बाई 2 और ये 8 सी वी स्क्वायर बाई 2, 9 सी वी स्क्वायर बाई 2, इतनी एनर्जी है इनिशियल। हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ 4 2 8, 8 प्लस 1 9 सी वी स्क्वायर बाई 2, ये इतनी एनर्जी सिस्टम में स्टोर है। अब कहा गया कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है आपस में। कैपेसिटर C इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर 2C, ये C था और ये 2C था, तो इधर चार्ज है प्लस CV, इधर माइनस CV, और इधर प्लस 2CV, इधर माइनस 2CV, और आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो पूछा है एनर्जी का कितना लॉस होगा। तो कनेक्शन के बाद जो सिचुएशन आएगी, मान लेते हैं इस पे चार्ज है Q1, इस पे माइनस Q1, इस पे Q2, इस पे माइनस Q2, ये है कैपेसिटेंस C, ये है कैपेसिटेंस 2C। तो चार्ज कंजर्वेशन से Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा? 3CV के, टू 4CV, सॉरी ये 4CV होगा कि 2C और 2V है, तो ये 4CV माइनस 4CV। तो चार्ज कंजर्वेशन अगर लगाऊं तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 5CV हो जाएगा। ठीक है ना, 4CV प्लस ये 5CV, और पोटेंशियल बराबर होगा, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आफ्टर द स्टेडी स्टेट हैज़ बीन रीच्ड तो पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएगा। तो Q1 बाई C बराबर Q2 बाई 2C, तो यहाँ से जो आएगा Q1 बाई C बराबर Q2 बाई 2C, ये कैंसिल हो गया। Q2 बराबर 2Q1, Q2 बराबर 2Q1, तो 3Q1 बराबर 5CV, तो Q1 की वैल्यू आ गई 5 बाई 3CV, ये आ गया आपको 5 बाई 3CV, और Q2 की वैल्यू जो आ जाएगी 2 टाइम्स Q1, तो 2 टाइम्स Q1 है तो 10 बाई 3CV, 10 बाई 3CV। तो फाइनल चार्ज है आपको 5 बाई 3CV और 10 बाई 3CV दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स पे। तो अब अगर एनर्जी हम लोग निकालें, तो E फाइनल, इसकी एनर्जी Q1 स्क्वायर बाई 2C और इसकी एनर्जी Q2 स्क्वायर बाई 4C, क्योंकि खुद का कैपेसिटेंस 2C है तो 2 टाइम्स ऑफ 2C 4C हो जाएगा। तो Q1 स्क्वायर बाई 2C प्लस Q2 स्क्वायर बाई 4C, Q1 की वैल्यू है 5 बाई 3CV, तो 25 बाई 9, 9 2 18, 25 बाई 18 CV स्क्वायर प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी 10 बाई 3, 100 बाई 9, 9 4 36, 100 बाई 36 C
CV², ठीक है ना। तो इसको अगर किया जाए तो 50/18, 50 + 25, 75/18, 75/80 फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी उतना है, फाइनल एनर्जी इतना है। तो अगर देखें इसमें कंपेयर करके तो इसको हम लोग 81 CV²/18 भी लिख सकते हैं। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वाइट ऑब्वियस है, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है, फाइनल एनर्जी कम है, तो एनर्जी को लॉस हुआ। और वो एनर्जी को लॉस कहाँ जाएगा? दैट विल बी अपीयर एज हीट इन द कनेक्टिंग वायर। ये कनेक्टिंग वायर में हीट में आपको डिसिपेट होगा। तो डिफरेंस अगर ले लें तो 81 - 75 डेल्टा ई की जो वैल्यू होगी 81 - 75 6/18, 6 CV²/18, और ये 1/3 CV², ठीक है ना। 6 3 18। अब एनर्जी कह रहा है x/3e, हाफ CV²। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो जो एनर्जी लॉस आया वो आया CV²/3। 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो CV²/2, और ये E था इनिशियल एनर्जी, तो 2/3e। तो यहाँ से क्लियर है कि जो हमारा कोफिशिएंट है x की वैल्यू वो कितना होगा? 2। तो इसका आंसर है 2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, एक डिस्क दिया हुआ है, कह रहा है कि कंसिडर अ डिस्क ऑफ मास 5 kg, रेडियस 2 मीटर, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 radian/second अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. An identical disk is kept gently over the rotating disk along the same axis. The energy dissipated so that both the disks continue to rotate together without slipping. ठीक है ना। एक डिस्क की बात की जा रही है, एक डिस्क की बात की जा रही है कि ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये डिस्क जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 radian/second. ठीक है, इसका मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है। एक दूसरी आइडेंटिकल डिस्क को इसके ऊपर जेंटली प्लेस कर देना है, ठीक है ना। जेंटली प्लेस कर देना, तो पूछा गया है कि कितना एनर्जी लॉस होगा। अब एनर्जी लॉस क्यों होगा? द मोमेंट वी विल कीप द डिस्क ऑन द लोअर डिस्क इन द रोटेटिंग डिस्क, तो दोनों डिस्क के बीच में जो फ्रिक्शन है वो प्ले करना, वो स्टार्ट करेगा अपना रोल प्ले करना। नाउ फ्रिक्शन, व्हाट फ्रिक्शन विल डू, this friction will try to slow down this disk and this friction will try to increase the speed of this disk. क्योंकि इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा और इक्वल अपोजिट होगा, तो इसके स्पीड को फ्रिक्शन कम करना चाहेगा और उसके स्पीड को फ्रिक्शन बढ़ाना चाहेगा। सो स्पीड ऑफ दिस फ्रिक्शन, दिस डिस्क विल रिड्यूस एंड द स्पीड ऑफ दिस डिस्क विल इंक्रीज। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, एंड एट दैट मोमेंट जो स्लिपिंग होगी वो खत्म हो जाएगी, एंड बोथ द डिस्क विल स्टार्ट रोटेटिंग विद कॉमन स्पीड। तो वही कॉमन स्पीड पूछा गया है। तो चूंकि फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स है, तो उसका जो भी फ्रिक्शनल टॉर्क होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों डिस्क के बीच में। सो नेट टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी 0। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग ये मान लें कि लेट ओमेगा डैश कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा डैश कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से L इनिशियल बराबर N फाइनल, I ओमेगा, दोनों डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी, 2I ओमेगा डैश, 2I से I कैंसिल, तो ओमेगा डैश बराबर ओमेगा/2, ठीक है ना। तो जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है वो तो 5 radian/second है। कॉमन एंगुलर वेलोसिटी 5 radian/second है, मतलब दोनों डिस्क एक साथ घूमेंगी 5 radian/second से आफ्टर द स्लीपिंग हैज बीन सीज्ड। तो अगर इनिशियल काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ई इनिशियल हो जाएगा ½ I ओमेगा², हाफ I की वैल्यू हो जाएगी आपकी MR, ये डिस्क है तो ½ MR², हाफ इंटू मास है 5 और रेडियस है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ओमेगा है 10 तो 100, तो 2 2 सा 4, 2 से 2 कैंसिल, 500 जूल। और फाइनल जो एनर्जी हो जाएगी ½ इंटू 2I इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर, तो I है ओमेगा डैश स्क्वायर, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी ½ MR², हाफ इंटू मास है 5 इंटू 4 और ये 25, 2 2 सा 4, ये 250 जूल। तो फाइनल एनर्जी है 250 जूल। तो देख सकते हैं कि एनर्जी में लॉस हुआ है,
So initial energy is 500, final is 250. So where does this 250 has gone? So this 250 joule energy was dissipated as heat in the form of frictional. तो ये आंसर जो हो जाएगा that is 250 joule. Now coming to question number 29. In a closed organ pipe, the frequency of fundamental note is 30 Hz. A certain amount of water is now poured in the organ pipe so that the fundamental frequency is increased to 110 Hz. If the organ pipe has cross-sectional area of 2 cm square, the amount of water poured in the organ tube is. Organ pipe का क्वेश्चन है, क्लोज ऑर्गन पाइप. क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होता है? एक पाइप है जो एक एंड से बंद होता है. ठीक है, दो सिचुएशन दिखाई गई है क्वेश्चन में. ठीक है, अब ये एयर कॉलम है, इसमें ये एयर कॉलम है, ऑर्गन पाइप में ये एयर कॉलम है. ठीक है, ये एयर कॉलम है और एयर कॉलम का जो लेंथ है, लेट सपोज दिस इज L1. और दूसरा जो है अब इसमें इन्होंने क्या किया है, नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव फिल्ड सम वाटर इन दिस ऑर्गन पाइप. सेकेंड केस में वाटर को फिल कर दिया गया है. सेकेंड केस में वाटर को फिल कर दिया गया और ये आपका एयर कॉलम ऊपर है. तो अब इस एयर कॉलम की लेंथ मान लेते हैं L2. एयर कॉलम की लेंथ मान लेते हैं L2. तो पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया गया है. तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो दे रखा है ऑर्गन पाइप का, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है क्लोज ऑर्गन पाइप की, न्यू जो होता है वो V/4L. ये फॉर्मूला होता है क्लोज ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का. V/4L, n को 0 पुट करके 2n+1 V आता है, तो n को 0 पुट कर देंगे तो वो अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पर इसको दो बार यूज़ करना है एक इक्वेशन को. पहले केस में L1 के लिए, दूसरे केस में L2 के लिए, और हमको डिफरेंस ले लेना है. तो पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू1 बराबर V/4L1, ये है 30 हर्ट्ज. साउंड की स्पीड 330 लेने के लिए कहा जा रहा है. 330/4L1 बराबर 30. तो L1 बराबर 330/4 इंटू 30, 11/4 मीटर. 11/4 मीटर का आपका एयर कॉलम है पहले केस में. ठीक है ना, ये जो वैल्यू है वो 11/4 मीटर है. ठीक है, अब सेकेंड केस में जो ये कह रहे हैं कि सेकेंड केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो चुकी है, नाउ दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/4L2 और ये 110 हर्ट्ज है. V की वैल्यू 330/4 इंटू L2 बराबर 110, कैंसिल 11 3 जा. सो L2 बराबर 3/4 मीटर. ठीक है, 3/4. तो अब अगर हम लोग इसको वो करें, डिफरेंस लें L2 और L1 और L2 का, तो जो डिफरेंस होगा ये है 3/4. ये जो आया दिस इज 3/4 मीटर. तो अब अगर डिफरेंस लिया जाए तो डेल्टा L बराबर L1 माइनस L2, 11/4 माइनस 3/4, 8/4 मीटर इक्वल टू 2 मीटर. 2 मीटर का डिफरेंस है. ठीक है ना, 2 मीटर का डिफरेंस है डेल्टा L में. तो अब अगर इसको देखें तो डेल्टा L हमारा 2 मीटर आया है, यानी 200 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जो मास ऑफ वाटर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा L इंटू रो. क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डेल्टा है 200 और डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो 400 ग्राम जो है वो वाटर फिल किया गया है. तो ये जो वाटर है दिस इज M इक्वल टू 400 ग्राम. 400 ग्राम का वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऑर्गन क्लोज ऑर्गन पाइप में 400 ग्राम पानी भरा गया है, तब ये सिचुएशन प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, now coming to last question, a ceiling fan having 3 blades
of length 80 centimeter each is rotating with an angular velocity of 1200 rpm. The magnetic field of Earth in that region is 0.5 Gauss and angle of dip is 30 degree. The EMF induced across the blade is n pi into 10 raised to the power minus 5 volt. The value of n is. एक सीलिंग फैन के बारे में डिस्कशन की जा रही है. एक सीलिंग फैन है, एक सीलिंग फैन है. ठीक है, ये सीलिंग फैन है और ये रोटेट कर रहा है अपने सेंट्रल स्पिंडल के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से. ठीक है. कह रहा है कि ईच ब्लेड इज ऑफ 80 सेंटीमीटर लेंथ. हर एक ब्लेड जो है वो 80 सेंटीमीटर के लेंथ का है. हर एक ब्लेड जो है वो 80 सेंटीमीटर के लेंथ का है सीलिंग फैन का, और 1200 आरपीएम से ये रोटेट कर रहा है. यानी ओमेगा की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 2 पाई एन अपॉन 60, 2 पाई इंटू एन अपॉन 60, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. 40 पाई रेडियन पर सेकेंड इज द ओमेगा ऑफ द दिस पर्टिकुलर फैन. तो अब इसमें यूज किया गया कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ डिप का. ठीक है ना. तो हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि अगर अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये बी एच है और ये बी वी है वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये होता है डेल्टा जो कि 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है ना. अब जब सीलिंग फैन घूमेगा, जब पंखा घूमेगा, तो पंखा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है. ठीक है. द फैन इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो वर्टिकल कंपोनेंट जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का होगा, वो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जो इन सभी ब्लेड्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. जो ब्लेड्स के परपेंडिकुलर होगा. तो BV की अगर बात करें तो दैट विल बी BH साइन 30 डिग्री, सॉरी B नेट साइन 30 डिग्री. ठीक है ना. और B की वैल्यू दे रखी है 0.5 गॉस. तो 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू 1/2, 0.25 इंटू 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला. इतना मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल कंपोनेंट का. 0.25 इंटू 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला. 0.25 इंटू 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला. ठीक है ना. तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट आया 0.25 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. अब इस फैन के एक ब्लेड को अगर हम लोग बनाएं, इस फैन के एक ब्लेड को अगर हम लोग बस बनाएं, लेट्स ड्रॉ ओनली वन ब्लेड ऑफ दिस फैन. सो ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है. ठीक है. अब ये घूम रहा है ओमेगा से, जो कि कितना है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ है वर्टिकल कंपोनेंट. तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके दोनों एंड्स के बीच में, द मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इसके दोनों एंड्स के बीच में, वो मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा डेल्टा वी, वो हो जाएगा हाफ बी ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, हाफ बी एल ओमेगा स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है आपको जाकर मोशनल ईएमएफ का. तो बी की वैल्यू हमें यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट रखना है 0.25 इंटू 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला. लेंथ है 80 सेंटीमीटर, 80/100. और ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 40/40 रेडियन पर सेकेंड. डेल्टा वी इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ इंटू बी की वैल्यू है 0.25 10 का पावर माइनस 4 40 पाई 80/100 इंटू 80/100. अब इसको बस सॉल्व हमें कर लेना है. तो यहाँ पर 220 कैंसिल 8 8 64 1/4 इंटू 20 इंटू 64/100 इंटू पाई इंटू 10 का पावर माइनस 4. 25 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 16 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपको जाकर 5
3.5 पाई इंटू 10 का पावर -4। सो अगर अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग देखें तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा वी इक्वल टू 3.5 इंटू 10 का पावर -4। इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो इतना वोल्ट आएगा। तो इससे अगर मैच करूं, अच्छा पाई भी है यहाँ पर, पाई छूट गया सॉरी, तो मैच किया जाए तो n की वैल्यू जो है आपकी 35 हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज़ 35। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यूज़ किया गया था मोशनल ईएमएफ का फॉर द, और अर्थ के मैग्नेटिज्म से इसको रिलेट किया गया। ठीक है। सो विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई कम टू एन एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ JEE Main 2024 30 Jan paper of morning shift. So in the next video I will be coming with another paper for the same morning shift. Till then, thank you.